Critical social science methodology. You can see from page number 898 in Harlambaugh's Blue Book. The work has been done by Lee Harvey. And what are the main points? First point is nature. What is the nature of critical social science research? Critical social science embraces all those approaches in sociology that aim to be critical of society in order to facilitate social change. So, this type of research is not content with just describing or analyzing society. Its main goal is to challenge the injustices, highlight power imbalances, and promote transformation in society. It is a kind of activist research where the researcher plays a role in initiating change. For example, feminist researchers. Feminist researchers highlighting the gender pay gap in Indian corporate sectors aim to bring policy changes, not just document inequality. It goes beyond simply criticizing. What does it say? It says critique is an integral part of the process. So criticism here is not about fault finding. Fault finding. Uh, it is about constructive analysis, understanding the roots of oppression or inequality, and pushing towards alternatives. For example, Ambedkarite scholars who analyze caste system critically to create new frameworks of social justice are engaging in this type of critique. It says knowledge can never be separated from values. Unlike positivist approaches that seek value free objectivity, critical social science accepts and embraces values. Researchers bring their own ethical stance to the study, especially when working with oppressed or marginalized groups. Now, imagine a sociologist working on manual scavenging in India. Cannot be neutral. The person cannot be neutral. Their very involvement carries moral urgency. Now, we come to examples of critical social science research. Example of feminist studies on housework. Work of Karl Marx and Paul Willis study of working class lads in the education system. ये एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल्स देने से आपका आंसर में काफी डेप्थ आएगा. सो दीज आर द क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग रिसर्च टू क्वेश्चन पावर एंड inequality. Feminist studies show how housework is unpaid and unrecognized labor. Feminist sociologists have critically analyzed the seemingly mundane and invisible labor done by women within households. Housework is not just a private matter, but a site of gender inequality and economic exploitation. Feminist research reveals how housework contributes to capitalism by reproducing the labor force, meaning raising children, caring for workers without receiving direct compensation. Paul Willis Paul Willis study of working class lads. Paul Willis studies show how education does not liberate but often reproduces class structure. Paul Willis, in his ethnographic study, Learning to Labor, explored how working class boys, lads, resist the school system which they see as irrelevant to their future jobs. This resistance, ironically, reproduces their class position as they end up in the working class occupations. This study critiques how education, which promises mobility, often reinforces social inequality. तो ये दो बहुत मेजर एग्जाम्पल्स हैं क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च के. पहला फेमिनिस्ट स्टडीज ऑन हाउसवर्क, जिसमें कि ये समझाया गया है कि हाउ हाउसवर्क इज अनपेड एंड अनरिकॉग्नाइज लेबर, इसमें फेमिनिस्ट स्टडीज हुआ है. और दूसरा पॉल विलिस स्टडी ऑफ वर्किंग क्लास लैड्स इन द एजुकेशन सिस्टम, जिसमें ये समझाया गया है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे उसी इनइक्वालिटी और क्लास स्ट्रक्चर को रिप्रोड्यूस करता है. इस पे इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया है. ये दो एग्जाम्पल हैं. आप बस ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फेमिनिस्ट स्टडीज ऑन हाउसवर्क एंड पॉल विलिस स्टडी ऑफ वर्किंग क्लास लैड्स इन द एजुकेशन सिस्टम. इसको आप इंडियन पैरेलल से भी जोड़ सकते हैं. जैसे कि इन इंडिया सिमिलर पैटर्न्स आर ऑब्जर्व्ड इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वेयर यूथ
ये जो पॉल विलिस वाला स्टडी है उसके लिए बता रहे हैं, वेयर यूथ रेजिस्ट फॉर्मल स्कूलिंग. फॉर एग्जाम्पल, Bihar and UP, research in Bihar and UP shows that young Dalit boys often see school as detached from their reality and instead they seek early employment, inadvertently perpetuating the same caste-based labor system. क्योंकि जहां वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहां पर भी सेम जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो क्लास का हो, कास्ट का हो, वो रिप्रोड्यूस होता है. और चूंकि वही सेम स्ट्रक्चर वहां पर भी है तो फिर वो उसमें नहीं रहना चाहते हैं. जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में वहां पर भी वही कास्ट स्ट्रक्चर अगर रिप्रोड्यूस हो रहा है तो बच्चे वहां नहीं पढ़ना चाहते हैं. और फिर चूंकि वो अपने एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर उससे ड्रॉप आउट हो जा रहा है और ड्रॉप आउट के बाद में सेम टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसको में उसमें वो वापस आ जा रहे हैं. They are not able to break through, not able to use the education system. Lee Harvey has divided critical social science research in three main types based on class, gender, and ethnicity and racism. So, according to Lee Harvey, critical research typically engages with themes like class, gender, race, ethnicity. इसमें आप सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी इन दोनों को भी इश्यूज को भी जोड़ सकते हैं. तो 5 हो जाएंगे एक तरह से, बट ली हार्वी में 3 में डिवाइड किया था, क्लास, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेसिज्म. बट इसमें आप ये दोनों को भी जोड़ लीजिए, सेक्सुअलिटी एंड डिसेबिलिटी. These axes of identity and oppression intersect to create unique social experiences. The goal of critical research is to uncover these hidden structures and challenge them. अब जैसे आप एग्जाम्पल देखिए क्लास का. Studies on informal sector workers in India, for example, मान लीजिए rag pickers in Delhi. Now that reveals how class intersects with caste to keep workers in exploitative conditions. Gender पर आते हैं. Research by SEWA, that is Self-Employed Women's Association, focuses on empowering women in informal sectors and challenging systemic patriarchy. Ethnicity and racism. Northeastern students in Delhi often face discrimination, which is documented in studies around urban racism. अब आते हैं issues on sexuality. Queer studies in India post 377 verdict explore how legal changes are not always matched with social acceptance. मतलब legal level पे तो changes हो जाते हैं, but क्या social acceptance आता है? And then disability. Activists and scholars have shown how the Indian education and employment systems exclude disabled people by design, not by accident. इस तरह से सिस्टम डिजाइंड ही है कि आप अगर डिसेबल्ड हैं, अगर मैं डिसेबल्ड हूं तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज सिस्टम ही उस तरह से डिजाइंड है. चाहे वो एक्सेस का क्वेश्चन हो, चाहे करिकुलम का क्वेश्चन हो, करिकुलम की एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन हो, बुक्स की एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन हो, तो आई एम बीइंग एक्सक्लूडेड by design. Now we come to the main features of critical social science research. First point being abstract concepts and ideology. So critical social science research uses abstract concepts like housework, but it goes beyond the surface to study ideology behind taken for granted beliefs. Like critical social science research analyzes how common sense beliefs, जैसे कि housework is a woman's duty. Now these are ideologically loaded. They benefit some groups and while harming others. Like they benefit the groups like for men and capitalists while it harms other groups like women. For example, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कल्चरल नॉर्म्स अराउंड डाउरी और women's sacrifice are ideological tools that reinforces patriarchy. Also, media portrayals of ideal housewives perpetuate these ideologies. यहाँ पे आइडियोलॉजी का डेफिनेशन को हम लोग को रिमाइंड कर लेना चाहिए कि दीज आर अ सेट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स दैट जस्टिफाई एंड नॉर्मलाइज सोशल अरेंजमेंट्स इवन व्हेन दे आर अनइक्वल. ये जस्टिफाई कर देते हैं इन आइडियोलॉजी उस अरेंजमेंट को, इवन दो इट इज अनइक्वल, इट जस्टिफाइज दैट अरेंजमेंट. नेक्स्ट फीचर ऑफ क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च इज टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री. तो टोटलिटी का क्या मतलब है? Totality refers to the view that social phenomena are interrelated and form a total whole. It refers to the view that social phenomena are interrelated
and they form a total whole. So critical researchers, they don't study one isolated event. उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं. They look at how economic, political and cultural forces are interlinked to form a total system. जैसे कि मान लीजिए आपको इंडिया के फार्मर सुसाइड्स को पढ़ना है, तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इन्वॉल्व्स कास्ट स्ट्रक्चर्स, बैंकिंग पॉलिसी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारी चीजें. इट इज ऑल आर इंटर रिलेटेड एंड इट फॉर्म्स अ टोटल होल. अब आते हैं स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर कंस्ट्रेन्स और लिमिट्स व्हाट पीपल कैन डू. Structure constraints or limits what people can do. So structures like caste, patriarchy, capitalism, they shape what is possible or impossible for people. So for example, a Dalit woman in a rural area has a very different life chances than an urban upper caste man. नेक्स्ट हम आते हैं हिस्ट्री पे. टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है कि दीज स्ट्रक्चर्स आर नॉट स्टैटिक. जो स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात किए अभी, these are not static, they change. Therefore, studies of society needs to be in historical context. Studies of society needs to be in historical context. तो मतलब क्या हुआ कि society evolves. Critical research must trace history to understand today's inequalities. For example, understanding land ownership in India needs looking at colonial and caste histories. तो क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च का पहला पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी, दूसरा टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री. ये दोनों हमने देखा. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज डिकंस्ट्रक्शन, एसेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन. तो क्रिटिकल मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन द डोमिनेंट आइडियाज, मतलब डिकंस्ट्रक्शन, to expose hidden power and then rebuilding understanding, that is reconstruction, based on more just and inclusive perspectives. जैसे in feminist research, deconstructing how housework is labeled as natural or unskilled labor and then reconstructing it as economic labor to demand wages. Deconstruction क्या है कि different parts of social life are broken down to unlock the essence. So sociologists using critical methods try to get to the core or root essence of social phenomena, not just how things appear but what they mean structurally and ideologically. उसको वो उसके एकदम कोर पे जाकर समझने का कोशिश करते हैं. तो पहले तो हमने इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हाउसवर्क का कॉन्सेप्ट है, उसको डिकंस्ट्रक्ट किया, उसके एसेंस यानी कि कोर तक गए. कोर तक जाने के बाद हम वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. और रिकंस्ट्रक्ट किस तरह से करेंगे? यूजिंग द मोर जस्ट एंड इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव्स. डिकंस्ट्रक्शन, एसेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन. इसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे, विच इज प्रैक्सिस. प्रैक्सिस मीन्स प्रैक्टिकल रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी. Practical reflexive activity. तो according to Harvey, researcher should be an involved and committed participant. तो इसका क्या मतलब हुआ कि unlike positivist research, which assumes the researcher should be detached and neutral, critical methodology expects the researcher to be involved, reflexive and politically committed. They are not just gathering data, they are part of the process of change. तो यहाँ पे चेंज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम सोशियोलॉजी को इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ उसको इंटरप्रेट करना है, समझना है, हमको उसमें बदलाव भी लाना है. अब जैसे पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च, PAR, पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च इन इंडियन स्लम्स, वेयर रिसर्चर्स एंड लोकल रेसिडेंट्स दे co-develop solutions to sanitation और हाउसिंग इश्यूज. मिल के वो काम कर रहे हैं, क्योंकि जो लोकल रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है अपने इश्यूज की, इसलिए रिसर्चर्स वहां पे मिल के उनके साथ में सॉल्यूशंस क्रिएट कर रहे हैं. दूसरा एग्जांपल, प्रदान्स वर्क इन ट्राइबल एरियाज ऑफ झारखंड, दैट इज आल्सो ऑफन बेस्ड ऑन सच पार्टिसिपेटरी एंड एंगेज्ड मेथड्स. सो प्रैक्टिस चेंजेस द वर्ल्ड. प्रैक्टिस मीन्स फ्यूजन ऑफ थ्योरी एंड चेंज, theory and action. Praxis means the fusion of theory and action.
The aim is to transform the society, not just interpret it. So sociology becomes a tool for change, for emancipation. अब यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि हाउ सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू सोशल चेंज. सो व्हेनेवर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस अपीयर, दिस दिस प्रैक्टिस इज की टू आंसरिंग सच क्वेश्चंस विद क्लैरिटी. तो अगर आप क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ेंगे तो वहां पे चेंज आएगा ही आएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट आप वहां पर दे सकते हैं कि कैसे सोशियोलॉजी सोशल चेंज लाता है, कि हमने सोसाइटी के उस हिस्से को पढ़ा और फिर उसमें बदलाव भी हम ला रहे हैं. तो मेन फीचर्स क्या क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च के? एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी. पहले हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को लिया और उसके पीछे की आइडियोलॉजी को समझा. फिर टोटलिटी, स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री. हम उसको टोटल में पढ़ेंगे, एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह नहीं, इंटर रिलेटेड, कितने सारे चीजों से वो जुड़ा हुआ है. उसके स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स और लिमिट व्हाट पीपल कैन डू. और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाकर देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर वो इवॉल्व करता है, वो स्टैटिक नहीं होता है. तो अगर हमको आज की किसी चीज को पढ़ना है तो पीछे से जाकर उसको समझना होगा कि वो आज ऐसा क्यों है. फिर हम आएंगे उस कॉन्सेप्ट को, फिर हम डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके विभिन्न भागों को तोड़कर उसके एसेंस तक पहुंचेंगे, उसके मेन कोर पे, और वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे. जैसे मान लीजिए हमको हाउस वर्क को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, कि जिसमें कि उसको एज इनविजिबल लेबर की तरह देखा जाता है, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता है, और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे इकोनॉमिक लेबर के रूप में, और उसमें हम वी विल डिमांड वेजेस. और लास्ट में हमारा मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? प्रैक्टिस, मतलब इससे हमको बदलाव लाना है. तो इस चीज को हम देखेंगे कि रिसर्चर शुड बी इन्वॉल्व एंड कमिटेड पार्टिसिपेंट. तो ये इसका मेन फीचर हो गया. तो हमने अभी तक क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च का नेचर क्या है, उसके जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, कितने में वो डिवाइडेड है, उसके मेन फीचर्स, इन सबको देख लिया. अब हम आएंगे क्रिटिकल सोशल साइंस के रिसर्च मेथड्स को देखने के लिए. तो पहला है, इट इज नॉट टाइड टू एनी सिंगल रिसर्च मेथड. इट इज नॉट टाइड टू एनी सिंगल रिसर्च मेथड. So critical social science does not limit itself to one specific method, जैसे कि सर्वेज या इंटरव्यूज अलोन. Unlike positivist approaches that prefer structured and standardized methods, critical methodology believes that the method should suit the aim of the research, especially if the aim is to uncover hidden structures or power relations. जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि if a researcher wants to study caste discrimination in elite universities in India, they might use both personal interviews to understand experience and document analysis to study institutional policies. तो वो किसी भी एक सिंगल रिसर्च मेथड से टाइड नहीं है. जैसा हमारा एम को सूट करे वो सभी मेथड्स को हम यूज करेंगे. क्वेश्चनर्स, इंटरव्यूज, केस स्टडीज, एथनोग्राफी, सेमियोलॉजी, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ रिसर्च, हम सारे मेथड्स यूज करेंगे. सो ऑल दीज मेथड्स आर एक्सेप्टेबल टूल्स इन क्रिटिकल रिसर्च, बट देयर यूज इज ड्रिवन बाय पर्पस, नॉट बाय ट्रेडिशन. क्वेश्चनर, इनका क्या फायदा होता है? इट इज यूजफुल टू गैदर जनरल पैटर्न्स और बेसलाइन डेटा. It is useful to gather general patterns or baseline data. Interviews allows for deep understanding of personal experiences. Case studies help focus on one community, incident or movement in detail. एक particular चीज पे अगर हमको focus करना है तो. Ethnography, it is immersive research that reveals cultural and social practices of marginalized groups. Ethnography. और सेमियोलॉजी क्या होता है? सेमियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस, SIGNS, साइंस, सिंबल्स एंड लैंग्वेज. स्टडी ऑफ साइंस, सिंबल्स एंड लैंग्वेज टू डिकोड आइडियोलॉजिकल मीनिंग्स. तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे मान लीजिए इंटरव्यूज है, तो स्टडिंग द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ आशा वर्कर्स ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन, अगर हमको वो समझना है तो हम उनको इंटरव्यू करेंगे. केस स्टडी, जैसे कि अगर हमको इन्वेस्टिगेट करना है अ दलित वुमन सरपंच स्ट्रगल इन पंचायत इलेक्शन, तो हम उस एक पर्टिकुलर केस को पूरा फॉलो करेंगे. एथनोग्राफी में लाइफ इन अ मैनुअल स्कैवेंजिंग कम्युनिटी, अगर हमको वो देखना है तो हम उसमें एथनोग्राफी यूज करेंगे. सेमियोलॉजी, जिसमें साइंस और सिंबल्स की बात है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू एनालाइज फेयरनेस क्रीम एडवर्टीजमेंट टू अंडरस्टैंड कास्ट एंड ब्यूटी आइडियल्स.
तो वहां पे ये साइन सिंबल इन चीजों पे फोकस किया जा रहा है कि कैसे उसके पीछे भी आइडियोलॉजिकल मीनिंग छिपा है, तो वहां पे हम सेमियोलॉजी यूज करेंगे. So any method is permissible as long as the researcher goes beyond the surface. The emphasis is not just on the tool used, but on the depth of analysis. A researcher should not just collect data or responses, they must explore the power structures. हमको उसके पीछे का आइडियोलॉजी समझना है. जैसे कि पहला में ही हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके पीछे का छिपा हुआ आइडियोलॉजी देखना है. They must explore the power structures, ideologies, and historical context behind those responses. तो अगर हम सिर्फ एक सुपरफिशियल स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर एक सुपरफिशियल स्टडी की जाए, that may note that tribal girls drop out of school due to lack of transport. लेकिन अगर हम बियॉन्ड द सरफेस जाके समझेंगे तो इट मे रिवील स्ट्रक्चरल निग्लेक्ट, जेंडर नॉर्म्स, लैंग्वेज बैरियर्स, ये सभी जो अभी तक रूटेड हैं बहुत सारे पॉलिसी फेलियर्स की वजह से, ये अभी भी हमारे सिस्टम में रूटेड है. तो ऊपर से देखने से वो सभी चीजें नहीं पता चलेंगी, खाली सुपरफिशियल लेवल की जानकारी मिलेगी. जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल बताया कि लड़कियां नहीं आ रही हैं हमारी क्योंकि वहां पे लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट है. लेकिन अगर हम उसको और बियॉन्ड द सरफेस जाके अच्छे से इन डेप्थ समझेंगे तो फिर हमको पता चलेगा कि उसमें और भी बहुत सारे बैरियर्स हैं. अब हम आते हैं इस मेथड के क्रिटिसिज्म पे. ये क्रिटिसिज्म वाज गिवन बाय मार्टिन हैमर्सली इन 1992. तो पहला पॉइंट है हाउ टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड. मेनी पीपल मे बी साइमल्टेनियसली ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड. बिल्कुल ये होता है. हैमर्सली क्वेश्चंस द ब्लैक एंड व्हाइट डिवीजन इन क्रिटिकल रिसर्च. हु इज ऑप्रेस्ड, हु इज ऑप्रेसिंग. इन रियल लाइफ इंडिविजुअल्स में होल्ड बोथ पोजिशंस एट वंस. ऐसा बिल्कुल होता है. जैसे मान लीजिए एक कोई स्कूल टीचर है, सो दैट स्कूल टीचर मे बी अप्रेस्ड बाय द administration in the school but may himself or herself discriminate against the students. वो खुद भी अप्रेस हो रहे हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी अप्रेस कर रहे हैं, ये भी होता है. या फिर कोई अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो वो खुद अपना डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन. लेकिन जब वो घर पर आते हैं तो घर पर दे माइट एक्सरसाइज पेट्रियार्कल पावर ओवर द विमेन. सो द लाइन बिटवीन द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड इजंट ऑलवेज क्लियर. तो ये तो पहला प्रॉब्लम है, कैसे डिस्टिंग्विश करें. दूसरा, प्रॉब्लम्स इन आइडेंटिफाइंग द सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन. मतलब कि देयर मे बी अदर सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन दैट आर स्टिल नॉट आइडेंटिफाइड. So we may not even know all the forces that causes oppression. Some sources remain invisible or hidden, especially if our own assumptions blind us. अब जैसे कि हम ज्यादातर फोकस करते हैं कास्ट या जेंडर बेस्ड ऑपरेशन पे, बट कई बार डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या डिजिटल एक्सक्लूजन जैसे कि लैक ऑफ इंटरनेट, ये ओवरलुक हो सकता है सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन. सो हैमर्सली वांट्स दैट क्रिटिकल रिसर्चर्स में मिस हिडन स्ट्रक्चर्स इफ दे एंटर विद प्रीफिक्स्ड आइडियाज. अगर हम बहुत ज्यादा फोकस्ड है एक सोर्स ऑफ ऑपरेशन पे तो बाकी सोर्सेज ऑफ ऑपरेशन को हम मार्जिनलाइज कर सकते हैं. Hammersley believes what constitutes oppression are subjective judgments. So he argues that identifying oppression is not always objective or clear cut. It often depends on value based or emotional interpretations which vary by context. तो ये subjective judgment पे भी निर्धारित हो सकता है, निर्भर हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए हिजाब का बैन इन क्लासरूम. Now that may be seen by some people as empowering, मतलब patriarchy के against. But it can be seen as oppressive also against religious freedom. उसके दोनों हिस्से हैं. So hence deciding what counts as oppression often involves subjective or political or moral judgment, not universal truth. Next point, interest of different oppressed groups might clash. जैसे कि मान लीजिए एक religious minority group might be oppressed. However, the religion might be highly patriarchal in nature and oppressive to women. तो researcher किस पर फोकस करें? बहुत मुश्किल है. Sometimes these two oppressed identities conflict. A group facing marginalization may itself practice oppression internally.
तो ऐसी स्थिति में रिसर्चर कहाँ फोकस करे? द रिसर्चर में स्ट्रगल विद द मॉरल ट्रेड ऑफ and cannot support all oppressed groups simultaneously without this conflict. Next, truth claims problematic. Difficult to evaluate truth of theories. Oppressed groups may not be able to evaluate the truth because of false consciousness. तो यहाँ पे ट्रुथ क्लेम के बारे में बात की गई है. Critical theory often assumes that the oppressed don't realize their condition due to false consciousness. ये false consciousness जो है मार्क्सिस्ट आइडिया है. इसको आप मार्क्सिज्म में जाके देख सकते हैं. मैंने इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है false consciousness आइडियोलॉजी के बारे में. तो मतलब कि who decides what is true consciousness? अब ये कौन डिसाइड करेगा? क्या हम डिसाइड करेंगे? रिसर्चर डिसाइड करेगा? Can researchers claim superior understanding? Who decides? अब जैसे मान लीजिए एक रूरल वुमन है. Now she doesn't feel oppressed by her husband's control. Let's say for example, is she unaware or is that her truth? So declaring others as unaware of their oppression is itself a value laden and risky move. आप समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे ये बहुत हम थिन आइस पे वर्क कर रहे हैं. जब अगर हम कह रहे हैं कि ये ट्रुथ है, आप ट्रुथ को नहीं जान रहे हैं, ये आपका फॉल्स कॉन्शियसनेस है, तो अगेन हम एक सुपीरियरिटी क्लेम कर रहे हैं कि हमको ज्यादा पता है, आपको नहीं पता है. तो ये भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है. तो इवन अ करेक्ट थ्योरी मे नॉट प्रोड्यूस सोशल चेंज टू ओवरकम ऑपरेशन. ये बात भी है. मतलब इवन इफ क्रिटिकल रिसर्चर्स डेवलप अ थ्योरेटिकली साउंड एंड एक्यूरेट एनालिसिस दैट डजंट गारंटी रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट. तो क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च का तो यही मेन है कि हमको लास्ट में उसमें चेंज लाना है, बट जरूरी नहीं कि उससे चेंज आए. जैसे मान लीजिए एम्पल रिसर्च ऑन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट बट मैनुअल स्कैवेंजिंग और कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन स्टिल कंटिन्यूज. वो तो अभी भी है अनफॉर्चुनेटली. तो क्रिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. सो हैमर्सली रिमाइंड्स अस दैट रिसर्च डज नॉट इक्वल रेवोल्यूशन. सोशल चेंज बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मल्टी लेयर्ड है. Now we come to defense of critical social science research given by Phil Karspeken. So Karspeken believes that critical research need not be biased just because the researchers engage in it have value commitments. तो इसका क्या मतलब हुआ? Karspeken responds to the criticism that critical researchers are biased because they start with commitment to social justice or liberation. He argues that having value commitments, for example, towards equality or justice, does not automatically make the research biased, as long as the research process is transparent and rigorous. अब जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, एक फेमिनिस्ट रिसर्चर का स्टडिंग वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन. सो that researcher may be committed to gender equality, but they can still collect valid data and analyze it logically. Their commitment to values guides their focus, not their findings. दूसरा point, the subject of research have a chance to confirm or contradict the understandings developed by researcher. मेरे हिसाब से एक बहुत important point है in favor of critical social science research, क्योंकि यहाँ पर जिनको पढ़ा जा रहा है, जैसे workers, women, minorities, they are not passive subjects. They are given a voice. They can agree or disagree with the researcher's interpretation. तो ये एक डायलॉग में वर्क करता है, एक डायलॉजिकल प्रोसेस है that checks the researcher's assumption and reduces bias. Thus, it encourages non-authoritarian relationship between the participants and the researcher. So, critical research does not place the researcher above the participants. Instead of a top-down model where the researcher is the expert, जैसा कि प्राय होता है, यहाँ पे it promotes mutual respect and dialogue. So the process is non-authoritarian and participatory. जैसे कि मान लीजिए ट्राइबल एजुकेशन को आपको स्टडी करना है, तो अ रिसर्चर डज नॉट जस्ट ऑब्जर्व और इंटरव्यू द कम्युनिटी बट ऑल्सो वर्क्स विद देम, इनवाइट्स देयर फीडबैक, को क्रिएट्स नॉलेज. दोनों को क्रिएटर है यहाँ पर. सो दिस एम्पावर्स द पार्टिसिपेंट्स एंड मेक्स द रिसर्च प्रोसेस डेमोक्रेटिक इन नेचर. तो फिल कार्सपेकन ने यहाँ पे डिफेंड किया है क्रिटिकल रिसर्च को बाय आर्ग्यूइंग कि वैल्यूज का मतलब ये नहीं कि बायस है. तो अगर रिसर्च को अच्छे से किया गया, वो फेयर है, ओपन है, तो ये नहीं कि उसमें बायस है. वैल्यू कमिटमेंट्स होने से फोकस ज्यादा बढ़ता है
और ज़्यादा अच्छा रिसर्च हो सकता है। एंड यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स कैन चैलेंज द रिसर्चर्स इंटरप्रिटेशन एंड रिसर्च यहाँ पे कोलैबोरेटिव इन नेचर, हायरार्किकल नहीं है। सो दिस क्रिएट्स अ मॉरली इंगेज्ड येट इंटेलेक्चुअली साउंड फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी। तो यहाँ तक हमने क्रिटिकल सोशल साइंस रिसर्च को